Morning students. Today I am going to start the next session number 3, creating editing tables in design view. In the last class I told you we can create table in two modes, using wizard and using design view. So today we have to learn how to create table in design view that I have already discussed in the last class, in the last video. But again today I am going to discuss it with you people, that how to create a table in design view, and after creating, if we need any type of editing, then how we will edit it. So let's have a look on the video very carefully and then we will discuss. So let me start the base first. So I am giving, this is the base, office base, in where we will create a table. And the first topic is creating and editing. In the last class I have already created a database that I am selecting it, class 10th, and click on finish. So first we will learn how to create table in design view. In the last class I have already discussed that design view window has 4 components, 4 parts. So first, from this window I will select the first option, tables, and it will give a 2 option, create table in design view, create wizard, you use wizard to create table. So I am selecting as per the topic, create table in design view. This is the window of creating a table. This first column is known as field selector. This is field name. Field name means we will write the column name, and this is the data type. Data type means what type of value it will be stored in this column. And this is description. Description, where we can write the short description about the column name. For example, if I am taking R number, then what R number is we can describe here, like R number means roll number or registration number. So I am creating a table EMP. So first column I'm going to give EID. EID can be text or varchar. Okay. Next is E name, will be text and varchar type. And next, suppose department number. Department number should be number, so I am giving a number. Next is salary. Salary should be a number, so I am giving it a number. And next is, suppose I am giving address. Address should be text and varchar. Okay. Now these are the fields of my table. Now if I want to make this column as a primary key, that you all know what is a primary key, then I have already described how to create a primary key. We will right click on this column and we will choose the primary key from the list. Primary key ensures that there should not be any duplicate value in this column, and there should not be any null. So click on save and give the name. Suppose I am giving a name EMP. Okay. Now the table has been created, but there is no records, there is no value. We have to populate the value in the table. Now let's see the next topic. What is the next topic? The first topic was creating table in design view, that I discussed. Next, setting a primary key. तो ये भी मैंने बता दिया, how to set a primary key. Right click on the column and select the primary key. Next is saving a table, that already we have saved the table. Next is modifying a table in design view. Now let's see what is modification, what the things that we can do in modification. In modification we can add more columns, we can move a column. That means column को हम up or down
मूव कर सकते हैं। डिलीटिंग फील्ड्स, वैसे कोई भी फील्ड जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। चेंजिंग फील्ड प्रॉपर्टीज़, जैसे अगर आपने गलती से किसी फील्ड का डेटा टाइप आपने गलत चूज़ कर दिया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करना है, व्हाट इज़। तो हमें कैसे करना है, राइट क्लिक करेंगे टेबल पे और यहाँ ऑप्शन आएगा एडिट। तो ये मेरा टेबल है, राइट क्लिक करते हैं इस पर, दिस इज द ऑप्शन इज एडिट, राइट क्लिक ऑन इट। देखिए टेबल हमारा ओपन हो गया। अब सपोज एड्रेस को मुझे सैलरी से पहले लेके आना है, तो हम इसको ड्रैग करेंगे और इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर नहीं है, MS एक्सेस में होता है। लेट्स सी। सबसे पहले कि अगर हमें किसी कॉलम की ज़रूरत नहीं है, जैसे एड्रेस नहीं चाहिए, तो हम इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अगर इसका डेटा टाइप आपको लगता है कि आपने गलत चूज़ कर दिया है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके फिर से आप दूसरा डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं। एक तो ये एडिटिंग हो गया। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, एडिंग और मॉडिफाइंग, डिलीटिंग। तो ऑन आगे चलते हैं। हाँ, अब अगर आप चाहते हैं इसमें तो आप कोई भी नेक्स्ट कॉलम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे एक चाहिए ईमेल एड्रेस, तो हम यहाँ पे ईमेल दे सकते हैं, टेक्स्ट वैरकर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मूविंग अ फील्ड। टू मूव अ फील्ड क्लिक वंस इन द फील्ड सेलेक्टर। तो हम मूव करने के लिए क्या करेंगे, जिस कॉलम को हमें मूव करना है, जैसे ईमेल को मुझे लास्ट में लेके आना है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके कट करेंगे और यहाँ पे लाके इसको हम पेस्ट करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें एक लिमिटेशन है कि जिस फील्ड को आप मूव करना चाहते हैं उसको वहाँ से कट करेंगे और उसको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट ये डिज़ायर्ड पोजीशन पे नहीं होगा, ये हमेशा लास्ट में मूव होगा। जैसे सैलरी मुझे एड्रेस के बाद रखना है, सैलरी को एड्रेस के नीचे लाना है, तो हम सैलरी को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर ईमेल को कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से सैलरी को हम एड्रेस के लास्ट में, एड्रेस के बाद लेके आ गए। तो अगर मान लीजिए फिर आपको चेंज करना है तो आप इसको इस तरह से पेस्ट कर पाएंगे, कट और पेस्ट करना होगा आपको। नेक्स्ट है डिलीटिंग। डिलीटिंग तो आप जानते हैं, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन आएगा, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड टाइप, डेटा टाइप इन द बेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेटा टाइप का मतलब होता है दीज, वो फील्ड को बताता है कि इस फील्ड में, इस कॉलम में इस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। तो डेटा टाइप जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पहला जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहला डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर स्टोर्स नॉन फ्रैक्शनल इंटीजर वैल्यू ओनली, ठीक है, इसमें डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट्स नहीं होंगे। पहला डेटा टाइप होता है टाइनी इंट, जिसकी रेंज होती है 0 से 255, सबसे स्मॉलेस्ट। उसके बाद स्मॉल इंट -2^15 to 2^15 - 1 इंटीजर, और उसके बाद बिग इंट, सबसे बड़ा बिग इंट डेटा टाइप होता है। अगर आपको इस रेंज के नंबर को स्टोर करना है तो आपको यूज़ करना होगा बिग इंट। उसके बाद है रियल नंबर डेटा टाइप। तो रियल नंबर जो है वो हो सकता है न्यूमेरिक और डेसिमल, रियल और फ्लोट और डबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप में हो सकता है लॉन्ग वैरकर, कैर, वैरकर, वैरकर, इग्नोर केस। डेट डेटा टाइप हो सकता है, डेट डेटा टाइप में आप डेट स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से टाइम डेटा टाइप है, टाइम स्टोर करने के लिए। डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, डेट और टाइम दोनों स्टोर करेगा। उसके बाद है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप या तो ट्रू या फॉल्स या येस या नो स्टोर करने के लिए यूज होता है। बूलियन का मतलब होता है येस, 0 और 1। नेक्स्ट सेटिंग और चेंजिंग फील्ड प्रॉपर्टीज इन डिजाइन व्यू। तो सेटिंग और चेंजिंग में हम कुछ प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। मैं प्रॉपर्टीज अभी आपको दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज कहाँ होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है एंट्री रिक्वायर्ड
फील्ड प्रॉपर्टी। एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जिस फील्ड को हम कंपलसरी कर देंगे, जैसे आप देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कुछ कॉलम्स जो हैं मैंडेटरी होते हैं, जिसके आगे रेड एस्ट्रिक लगा होता है कंपलसरी फील्ड्स, वैसे ही हम यहाँ पे कंपलसरी फील्ड्स बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट डेटा कैन नॉट बी स्क्रिप्ट इन द फील्ड, यानी कि वहाँ पे नल वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। तो देखिए जैसे ये नेम है तो इसको हमें एंट्री रिक्वायर्ड करना है, तो यहाँ देखिए ये नीचे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में एंट्री रिक्वायर्ड को यस कर देना है। तो ये ई नेम जो है, एम्प्लॉय नेम जो है वो कंपलसरी फील्ड बन जाएगा, हम उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, लेंथ फील्ड प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस द मैक्सिमम लेंथ द डेटा कैन हैव इन दिस फील्ड, यानी कि इसमें हम दे सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ फिगर्स कितने होंगे। जैसे सैलरी, तो मैक्सिमम डिजिट्स जो है वो 5 होने चाहिए, तो हम इसमें 5 कर देते हैं। 5 से ज़्यादा डिजिट का नंबर इसमें स्टोर नहीं होगा। ये हो गया लेंथ। उसका डेसिमल फील्ड प्रॉपर्टी। डेसिमल फील्ड प्रॉपर्टीज मतलब किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट्स कितने होने चाहिए, तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे मैंने सैलरी में दिया था डेसिमल मैक्सिमम पॉइंट जो है वो कितने हो सकते हैं, 2, तो मैंने इसमें 2 सेट कर दिया, तो 2 डेसिमल पॉइंट जो है वो इसमें आ सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आपने उस कॉलम में वैल्यूज फिल नहीं की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो सैलरी में अगर आपने वैल्यू नहीं डाला तो सैलरी में जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो सकता है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखिए 0 है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर, अगर मैंने सैलरी की वैल्यू को इग्नोर कर दिया तो क्या होगा इसमें। अब हम एक एंट्री करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सैलरी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दिख रही है। अभी हमने इसमें कुछ भी डाला नहीं है। जैसे एम्प्लॉय आईडी मैंने डाला 1 और ई नेम मैंने रिक्वायर्ड यस किया था, तो मैं इसको खाली छोड़ के देख रहा हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। डिपार्टमेंट नंबर 10, सैलरी मान लो मैं दे देता हूँ 5200, ईमेल MMM, एड्रेस मान लो मैं दे देता हूँ REH। नेक्स्ट कॉलम में हम चलते हैं, तो देखिए ये बोल रहा है एरर इंसर्टिंग रिकॉर्ड नल इनटू नन नलेबल कॉलम। देखिए ये नेम को बोल रहा है कि नन नलेबल कॉलम है, इसमें हमें वैल्यूज देना कंपलसरी है। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। तो 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डेसिमल प्लेस फील्ड वैल्यू एंड डिफॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड आई विल पोस्ट इट इन द नेक्स्ट वीडियो।